Students, all of you are safe, healthy. काळजी घ्या. Let's start. Last few lectures we covered some scientist information. We completed 3 scientist information: Doberianus triads, Newland's octaves, and Mendeleev's periodic table. All three were having 2 common points. The first one, they start arranging elements in increasing order of their atomic masses. All three. Second, all three were having limitations. That means all three were considered in failures category. Now we are going to start with a new scientist, that they are Henry Moseley. Henry Moseley belongs from England, British scientist. What he did, he started arranging elements in increasing order of atomic number. यानी पहले 3 साइंटिस्ट ने जो गलती की थी, इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्स अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, हेनरी मोसले ने एटॉमिक मासेस के बजाय एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? वैसे तो हम लोग 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं. एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. मीन्स व्हाट? इफ आई एम गोइंग टू से एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यानी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा. if a atomic number of sodium is 11, that means sodium contains 11 protons and 11 electrons. उसी तरीके से हम लोग 1 to 20 एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं. दैट टेबल वी हैव गिवन. नाउ बैक टू द हेनरी मोसले. सो ही अरेंज हिज elements in increasing order of their atomic number systematically in his table. That table is known as modern periodic table. So we mention our first point is like this one. He arranged all known elements in increasing order of their atomic numbers systematically in his table known as modern periodic table. Every scientist had given a law. Henry Moseley also has given a law. The law is what? Law of modern periodic table. What is that law? The law is like this one. The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. आप देखेंगे ये सेम टू सेम लॉ है जो हम लोग ने मेंडेलीव्स में देखा था, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में. But guys, there is a very important difference. That is, in Mendeleev's case, there was atomic masses, and for Henry Moseley, atomic number. Now, ये जो है modern periodic table, इसमें क्या specialization है? That we are going to study next. If a table is there, so there must be horizontal rows and vertical columns. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, एंड दैट 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स. सिमिलरली इट कंटेन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स. सो this way this modern periodic table is there. It contains lots of major special features. Because of that silent feature of modern periodic table. First point, modern periodic table is totally based on atomic number and electronic configuration of an element. Means while studying this table and elements in this table, we are collecting maximum information of element from atomic number and its electronic configuration. यानी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है. सो इसी के ऊपर हमारा टोटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है.
second and third silent feature is actually backbone of this lesson, as well as it is a backbone of modern elemental information. What is that? In a second point, we have given information about periods. In modern periodic table, what kind of information we can collect from the period? It is like this one. There are 7 horizontal rows known as periods, that we are knowing it very well. First information about period. Number of period indicates number of shells present to it. Number of period indicates number of shells present to it. Second information about the period. Each period starts 1 as valence electron. हर एक पीरियड की स्टार्ट 1 एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होगी. दिस नंबर, ये जो नंबर है पीरियड में, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड एंड्स विद अ नोबल गैस एलिमेंट. नेक्स्ट, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, whenever we are going to study periods, we are going to study from left to right. So when we go left to right in a period, metallic characteristics decreases and non-metallic characteristics increases gradually. Now guys, it is very heavy dose to you, but अभी तो खाली आप read करना, इसके details information I will give you by example, and very systematically I will show you all this information effectively. This one is our second silent feature regarding periods. Third one is related with the groups. There are 18 vertical columns known as groups. Number of group indicates, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कुछ ग्रुप नंबर रहेगा किसी एलिमेंट का, so that group number indicates number of valence electron present to it. यानी उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उसका ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे. Elements present in same group have same number of valence electrons, same valency, and these elements having a similar chemical properties. As I said to you, second and third point is heavy dose, but I will explain you by example now. First you read this one, then information of the same second and third point I will show you by an example, where I need to show 1 to 20 elements, their arrangement, how they are behaving in modern periodic table. I arrange 1 to 20 elements symbolic over here on a blackboard. This 1 to 20 elements and their information is very sufficient to say all details regarding a periods. So see, for that one I have mentioned you symbolic arrangement from hydrogen, helium, lithium, beryllium, so on up to calcium, Ca. Even their atomic number, these numbers 1, 2, 3, 4, 5, so on, mention up to the calcium 20 as it is. Then in a bracket I mention you their electronic configuration. You see there are some numbers in a bracket, so they are electronic configuration of that element respectively. Electronic configuration means shell wise distribution of an electron. Now from this table we are collecting information of our second silent feature. In a second silent feature we mentioned that there are 7 horizontal rows. You see the first horizontal row, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, so on. 7 rows are there in a modern periodic table known as periods. Now each period, okay, let's see the each period's information. Number of period indicates number of shells present to it. Means what? You see, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल पाई जाएगी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. सेकेंड पीरियड नंबर सेकेंड, इट इंक्लूड्स 2 shells. थर्ड पीरियड containing 3 shells. So fourth period containing 4 shells. What it means? Number of period
indicates number of shells present to it. Next, each period starts, हर एक पीरियड का स्टार्ट वन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है. हर एक पीरियड की स्टार्ट, आप पीरियड की स्टार्ट देखेंगे वन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी हर एक पीरियड का स्टार्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन से होता है. एंड दिस नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस. यू सी दिस नंबर 1 2 लास्ट शेल्स का जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. एंड इट एंड्स, दिस नंबर एंड्स, दिस पीरियड एंड्स एज अ नोबल गैस एलिमेंट्स. ये लास्ट वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे दे आर नोन एज नोबल गैस एलिमेंट्स. सो यही चीजें हम लोग ने राइटिंग में लिखी है सेकेंड पॉइंट में. थर्ड पॉइंट, इट इज लाइट इंफॉर्मेटिव. यू सी, इसमें हम लोग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. पीरियड्स में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे अफेक्ट होते हैं, दैट वी नीड टू नो. नाउ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is a metallic character and gaining of electron is a non-metallic character. Again I am repeating, इलेक्ट्रॉन देना ये मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन लेना ये होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं इन अ पीरियड एंड दे आर शोइंग देयर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स. मुझे सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करने का है. आई विल मेजरली फोकस थर्ड पीरियड टू मेंशन दैट पॉइंट. थर्ड पीरियड है सोडियम से स्टार्ट होता है. सो सोडियम के बारे में यदि मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. तो अभी सोडियम केमिकल रिएक्शन में कैसे बिहेव करेगा? सो सोडियम व्हाइल अ केमिकल रिएक्शन, सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस वन. इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला मेटल होता है, तो सोडियम मेटल है. Magnesium has a 2 valence electron. So instead of gaining 6, magnesium loses 2. Guys, last year we studied this one. खाली मैं थोड़ा सा repeat कर रहा हूँ one more time. Okay? Aluminium has a 3 valence electron. So aluminium's role is what? Losing 3. Sodium lose कर रहा है, magnesium lose कर रहा है, aluminium भी lose कर रहा है, यानी तीनों भी क्या हो गए? मेटल. बट आप मुझे बताएंगे ये तीनों में सबसे जल्दी कौन लूज करेगा? किसके इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज होंगे? यू आर राइट, सोडियम, क्योंकि सोडियम को एक ही लूज करने का है. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को, मैग्नीशियम को 2 लूज करने के, एल्यूमिनियम को 3 लूज करने के. तो सोडियम इस कंपैरिजन में हाई रिएक्टिव मेटल रहेगा. मैग्नीशियम इज high reactive than aluminum, but magnesium is less reactive metal than the sodium. Are you getting second metallic characteristics? Now we'll discuss the silicon. आप देख रहे हैं सिलिकॉन हैज अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसके बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इट हैज अ 2 ऑप्शन, आइदर टू लूज 4 और गेन 4. ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है. यदि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इट एक्ट्स एज अ मेटल. इफ इट इज गेनिंग 4, एक्ट्स एज अ नॉन मेटल. एट वेरी स्टार्ट ऑफ द लेसन वी डिफाइन आवर फर्स्ट डेफिनेशन. मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स हु इज लूजिंग और गेनिंग, दैट मीन्स बिहेव्स लाइक अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, कॉल्ड मेटलॉइड. तो यहाँ पर सिलिकॉन का रोल क्या रहेगा? मेटलॉइड. अभी हम लोग जाएंगे फॉस्फोरस के पास. फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में. सो फॉस्फोरस क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं. तो ये क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5, इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन्स लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा. इफ फॉस्फोरस इज गेनिंग 3, दैट मीन्स इट इज नॉन मेटल. सल्फर हैज अ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 6, तो सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 है, तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा. नाउ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये तीनों में कंपैरिजन करेंगे.
ऑल थ्रीज आर नॉन मेटल्स, ऑल थ्रीज आर नॉन मेटल्स। बट आप देखेंगे इनमें सबसे ज्यादा फास्ट कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कौन जल्दी स्टेबल होगा? क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन लेने का है, क्लोरीन हैज टू रिसीव ओनली वन, सो क्लोरीन रिसीव्स रैपिडली। सल्फर also receives electron, but it has to receive two, so it takes time than the chlorine. So sulfur non-metal है but less reactive than chlorine. But if you see phosphorus, it has to gain 3, so it takes more time to gain. So phosphorus is the less reactive non-metal, it is medium reactive, and chlorine is high reactive non-metal. So we mention our point like this one. When we go left to right in a period, metallic characteristics decreases. metallic characteristics जो है, सोडियम जो हाई है, मैग्नीशियम मीडियम, एल्यूमिनियम लो मेटल, नॉन मेटल characteristics increases gradually, low, medium, high. So this way we can cover our second point of silent feature of modern periodic table. Now यही टेबल को हम लोग वापस यूज करेंगे to mention the third point. ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग इसी टेबल से कवर अप करेंगे। We are going to use same 1 to 20 elements information to clear our third point of silent feature of modern periodic table regarding groups. What is that? Actually there are 18 vertical columns, but we are no need to study all 18 individually. हमारे 1 to 20 में जितने ग्रुप्स, जैसे ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, यदि वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, इट इज मोर देन इनफ। सो लेट्स सी, मैंने ग्रुप नंबर इस तरीके से मेंशन किया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम लोग को इसी को कवर करने का है, एंड फ्रॉम दिस वन वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सो व्हाट आई वांट टू से यू, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स, हम लोग ने इस तरीके से कहा था, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू इट। इसका मतलब क्या है? सी, ग्रुप फर्स्ट कंटेनिंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। ग्रुप 2 इंडिकेट्स 2 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर 3 containing 3 3 valence electrons. Group number 4 containing 4 4. Group number 5 5 5. So on. These numbers are there. So in very short, number of group indicates number of valence electron present to it. Next. Now, if a valence electrons are same, हम लोग ने इसके पहले जब पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया, that time we discussed that sodium is more reactive than magnesium. You are knowing the reason it very well. आपको मालूम है सोडियम क्यों मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देने का है और मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने का है। दोनों मेटल है, बट दोनों में सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव मेटल है। बट यदि मैं कंपैरिजन करूंगा सोडियम और पोटेशियम में, तो आप बता सकते हैं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव? सबसे पहले उनका रोल क्या रहेगा, वी नीड टू नो। सोडियम हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम आल्सो हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। If both are losing same number of electrons, so both having the same chemical properties, so इस यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ सोडियम एंड पोटेशियम आर इंक्लूडेड इन हाई रिएक्टिव मेटल्स कैटेगरी। मैग्नीशियम और कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, so both are having similar chemical property. इसी तरीके से हम लोग नॉन मेटल में भी देख सकते हैं, फ्लोरीन has to receive 1 electron and chlorine also receiving 1 electron, so both are similar way reactive as a non-metal. So what I want to say you, elements present in same group have same valence electron. एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एक ही ग्रुप वाले के। इस ग्रुप में देखो ना 1 1 1, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस सी भी 1। व्हाट इज वैलेंस सी? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 2, 2 2 3 3 4 4, यानी एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे।
What is valency? Valency means bioscientific combining capacity of an element. What is combining capacity? Combining capacity means either number of electron lose or gain. यानी कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है, ये जो नंबरिंग है उसको कहते हैं वैलेंसी। तो आप देखेंगे किसी भी ग्रुप को आप कवर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। आई विल डिस्कस सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है एंड वैलेंस इज ऑल्सो 2। यू सी बाय लूजिंग 2 2 2 they are having a valency 2. They have a valency 2 by losing 2 electrons. Now let's see here sixth group. Sixth group ऑक्सीजन और सल्फर हमारे पास है। तो यहां पर देखो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों की सेम है 6 6 एंड वैलेंसी क्या रहेगी? व्हाट आई डिफाइन वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन। तो ऑक्सीजन यहां पर गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर भी 2, सो दोनों की वैलेंसी क्या रहेगी 2 एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो सेम। दैट इज आवर third silent feature regarding group in modern periodic table. Now we are going to discuss third and remaining silent features of this modern periodic table. Fourth silent feature of modern periodic table. It is very short and easy. There are two horizontal rows. There are two horizontal rows at the bottom of modern periodic table. At the bottom of modern periodic table, known as series. See, elements present in the series. Element present in a series includes metals of lanthanides and actinides. यानी क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो लास्ट 2 लाइंस आ रहे उन्हें सीरीज कहा जाता है, सीरीज। और उस सीरीज में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो स्पेशली मेटल्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कैटेगरी के होते हैं। अब ये मेटल्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग ब्लॉक वाइज एलिमेंट को स्टडी करेंगे तभी हम लोग को इसके बारे में और डिटेल्स पता चलेंगे। नाउ इसके बाद वाला पॉइंट हम लोग कवर अप करेंगे। दैट इज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। In this point we are going to study how modern periodic table classified. It is classified by a two way. One is based on a blocks and other is based on chemical nature, chemical behavior of element. क्या है वो? Let us see. Based on blocks, modern periodic table classified as S block element, P block element, D block element and F block elements. एंड सेकेंड वो क्लासीफाई होता है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एज नोबल गैस एलिमेंट्स विच इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मुझे मालूम है आपको बहुत टेंशन आ गया है क्योंकि ये सब नाम हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट डोंट बी पैनिक। टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक टाइप से हम लोग फैमिलियर होने वाले हैं। एंड ऑफ दिस लेसन यू विल गेट मैक्सिमम एलिमेंटल इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। अभी इसके बाद मैं मेरे नोटबुक में सेम पॉइंट्स लिख कर रखा हूं। आई विल गिव यू दैट कॉपी। मैं उसके फोटो या वीडियो आपके सामने रखूंगा। द सेम पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में कॉपी करके रखना। दैट वन विल बी योर होमवर्क। और बाकी ये सब ब्लॉग्स एंड एलिमेंटल इंफॉर्मेशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। सो अभी इतना काफ़ी है, बहुत स्टडी कर लिया आपने। टेक केयर, हेल्दी रहना। हेलो, आज हम लोगों ने बहुत स्टडी कर लिया। Guys, this is what actual SSC. We having a lot of information in science. ज़रा भी रट्टा नहीं मारने का है, अंडरस्टैंड करके स्टडी करने का है। और जो कुछ चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ आपके नोटबुक में कॉपी करके रखना। सो टेक केयर, बी इन अ टच ऑफ स्टडी, हेल्थी रहना, स्टडी करना।
These are the silent features of modern periodic table. Copy this one. Enter this one in your notebook as a homework. Do the practice of the same one.